in change in total product due to due to use of one extra unit, or one more. We can also write it down, instead of extra we can also write it down more. So one more unit of the variable factors if we take in the production process, then there will be change in total product. Okay, it's called marginal product. This is what marginal product. So now talking about formula of marginal product, then we can say, if we say that marginal product is the TPN minus TPN minus 1. Or I will tell you later that what is TPN. N stands for previous production or total previous output. Okay, and TPN minus 1. Sorry, this is what? This is current output and previous production or output. Okay, so another formula, this is one formula. Another formula of MP, that is change in TP upon change in quantity. So this is what? Marginal product. So I hope this is clear till here, what is marginal product and total product. Let me again define this formula, or let me elaborate this. Marginal product is nothing but the change in total product. जब क्या होता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल को हायर करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल को कम लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट के कारण उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के कारण जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में चेंज ला रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं. नाउ एवरेज product. Now, what is average product? So it is the, or it refers to the physical physical output per unit of labor. Okay. Now, per unit of labor used in the process of production. Used in the process of production. So this is what? This is average output, average product. Okay. So average product is what? TP upon labor. So TP is what? Output, total output. Okay, and L is what? Units of labor, units of variable. We can also say units of variable factor. ठीक है. एवरेज प्रोडक्ट ये कहता है कि जब टोटल प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं किसी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो जो हमें रिजल्ट देता है क्या कहता है? एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, वो कहता है कि ये हमें एवरेज प्रोडक्ट मिला. नाउ if we see diagrammatically, or if we see from first table, that let me just draw the table, and then I will explain in a complete way that how to find TP, how to find AP, how to find MP on the basis of data.
Let me just erase all these things. Table is not good. So this is L, that is units of labor. This is TP, that is total product. This is AP, that is average product. And this is MP, that is marginal product. Okay. So if we suppose L, that is this is what labor. Okay. So if we say that if I take 1 unit of labor, 1 unit of labor, that in that case, then in that case 50 units of output, total 50 units of output are capable to produce. Okay. In average product, if we say that 50 divided upon 1, we get what? 50. ठीक है, अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 1 से, क्योंकि 50 यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है, जस्ट वेट. Okay, now MP, that is TP. Here formula of MP is what? TPn minus TPn minus 1. So TPn minus TPn minus 1. So TPn is what? That is 1. Okay. And TPn is what? N is 1 minus TP 1 minus 1. So here what? TP 1 minus TP 0. So here 0 is nothing. We will take 0. Okay. So in TP 1 minus TP 0. So in that case, TP, what is the total product in TP1? So we'll write it down like 50. 50 minus 0, that is 50. In another points, if I say 2 units of labor I am taking in production process. Okay. So if I take 2 units of labor, अगर 2 units of labor को लेते हैं टोटल प्रोडक्शन, तो फिर हमारा उस केस में टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो 90 होगा. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो 90 होगा. उस केस में हम देखें कि एपी क्या होगा, तो 90 अपॉन 2, दैट इज 45. फिर इस केस में हमारी एमपी क्या होगी? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. तो टीपी 2 minus TP1, that is 90 minus 50, we get what? 40. Okay. Now if I say 3 units of labor in 3 units of labor. Okay. So 3 units of labor, that is giving total production 120. Okay. So 120 divided 3, we get what? We get 40. Now if I say MP, how? Again 40 minus sorry, TP 40, 120, 120 90, we get 30. Now 4 units of labor I am taking in production process, and it giving 4 units of labor giving 140
output. Okay, now divide 140 upon 4, that we get what? We get 35. 35 मिलेगा। और हम इसे क्या करते हैं, 140 माइनस 120, क्योंकि टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 होगा, तो टीपी एन यहाँ पे क्या है, क्योंकि टीपी एन यहाँ टीपी एन जो होगा वो 40 आएगा, और टीपी एन माइनस 1 120, क्योंकि ये प्रीवियस आउटपुट को ले रहा है। तो इस केस में हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, 20। नाउ 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्शन 150, तो 150 divided upon 5, we get what? We get 30. Now 150 minus 140, we get 10. Sorry, we get only 10. Okay, so 6 unit of labor giving 150 units of output, and 150 upon 6, we get what? 25. 25. Now TPN minus TPN to find MP. तो क्या होगा, 150 minus 150, we get 0 output. Okay. Now if I say, if I am taking in production process, if I am taking 7 units of labor, then in that case total output will be 147. So divide 147 upon 7, we get 21. 147 minus 150, we get minus 3. ये क्या है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्या है, टीपी जो है वो बढ़ रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, एंड देन टीपी इज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, एंड टीपी starts to decrease. Okay, so in another slide I will tell you diagrammatically. So in another slide, I'm going to tell you that diagrammatically. Okay, so if I say that this is diagram, so this is total product. So this is what, if I say total product. Okay, now another diagram that is showing marginal product. Okay, so let's suppose this is highest point of TP. Okay, highest point of TP. So this is what highest point of TP, and if I divide in 3 zone, at this point MP is highest. In the initial phase, there are actually there are 3 phases. Okay, in the first phase TP is increasing, increasing rate, is it? Now in second, and we can also say in this, in the first phase हम लोग ये भी कह सकते हैं कि MP is also increasing. ठीक है, MP है वो भी इंक्रीज कर रहा है, TP जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, और फर्स्ट केस में या फर्स्ट फेज में देर आर 3 phases, that is divided into 3 phases. In the first phase TP is increasing with increasing rate, and in that first phase is also MP is also increasing. In the second phase I can say TP is increasing, but with decreasing, rate. Okay, and in that case MP
is declining. Now, in third cases, in third started to decline. Okay. So in that cases, we can say MP is just fall to negative, falls to zero, or falls to eventually we can say we can also say MP is just negative. Okay. Okay? कि अगर यहाँ टीपी हाईएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पे है तो उस केस में हमारा टीपी जो होगा एमपी जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा इस जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिएशन और सैटिएशन पॉइंट ठीक है टर्म है व्हाट इज एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल returns to scale which can also say the law of variables proportions or the law of diminishing marginal product the law of diminishing marginal product तो ये क्या होता है ये बेसिकली हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात करें सॉरी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू नॉट स्केल लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर ठीक है और रिटर्न्स टू not scale but factor because we are talking with certain references okay so returns to factor होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर बोल दे या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल दे या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोले सब इक्वल है सबका एक ही नाम है ठीक है सब सेम है तो ये क्या होता है ये कहता है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर या हम कह सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट तो पहले क्या होता है टीपी इंक्रीज होता है फिर क्या विथ इंक्रीजिंग रेट और फिर क्या होता है टीपी जो है इंक्रीज करता है विथ डिक्रीजिंग रेट एंड देन टीपी starts to fall and starts to fall in that cases mp becomes zero or negative okay so this is nothing but what I explained according to a diagram so this is what uh, returns to returns to factor okay which is also known as law of variable proportion कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते हैं कीपिंग फैक्स फैक्टर कांस्टेंट तो पहला हमारा एमपी इंक्रीज करता है फिर एमपी सेकेंड फेज में डिक्रीज करता है और इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जहां हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट टीपी एमपी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी ओके नाउ अब थोड़ा हम लोग बात करें कि व्हाट वर द कॉज व्हाट आर द कॉजेस what are the causes of increasing returns to factor इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या कॉज हो सकता है क्यों इनिशियली जो है देखा जाता है कि टीपी जो है या एमपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है तो व्हाट कैन बी द कॉजेस लेट मी so let me explain one by one so first cause would be increase fueler utilization
ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। क्या होता है फ्यूलर यूटिलाइजेशन, थोड़ा देख लें, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो इसमें ये कहता है कि इनिशियली क्या होता है ना, लेट सपोज वन लैंड मैंने यूज किया, वन लैंड एंड चलिए एक लैंड नहीं, चलिए 2 हेक्टेयर लैंड लेते हैं, ठीक है। हेक्टेयर लैंड की बात करें, इनिशियली जो मैंने लैंड लिया वो हमारे क्या है, 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। एक लेबर जो है 2 हेक्टेयर की खेती में काम कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है या क्रॉप लगा रहा है, जो भी कर रहा है। तो क्या हुआ कि देखिए फिक्स फैक्टर जो है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है, और हम लोग कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लेते हैं, ठीक है, 1 more unit of labor combine in this, ठीक है। 1 more unit of labor को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एक लेबर जो है प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है, तो बेचारा एक अकेला इंसान कितना ही प्रोडक्शन कर पाएगा, या एक अकेला इंसान 2 हेक्टर के खेती में, 2 हेक्टर्स के खेत में वो कितना क्रॉप लगा पाएगा, ठीक है। तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। तो जैसे ही एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, तो 2 लेबर मिलकर काफी अच्छे से क्रॉप लगा रहे हैं, काफी अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर का क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। फिक्स फैक्टर जो है सही मायने में पहले अंडर यूटिलाइज था, लेकिन अब इसे यूटिलाइज किया जा रहा है, फुल्ली यूटिलाइज जिसे हम लोग कह सकते हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड, ओके। नाउ सेकेंड रीजन वुड बी डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जैसे हम लोग कहते हैं इनविजिबल हैंड्स, ये एडम स्मिथ ने दिया था। चलिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहते हैं कि अगर अगर हर लेबर को उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम दिया जाए तो इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी, इफिशियंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हर लेबर को कहा गया कि अरे भैया तुम, अगर तुम जिस चीज में, जिस काम को करने में मोर एफिशिएंट हो, जिस काम को करने में मोर कैपेबल हो, अब वही काम को करो, ताकि इफिशियंसी, हर किसी की इफिशियंसी बढ़ जाए। लेट सपोज कि मैंने एक ऐसे लेबर को ऐसा काम दे दिया जो वो ना तो एफिशिएंट है और न ही उसे कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे इंसान को चुना जिसे मैंने कह दिया कि तुम क्या करोगे, सिलाई करोगे, ठीक है, तुम क्या करोगे, सिलाई करोगे, बट ही इज नॉट केपेबल, ही इज नीदर केपेबल नॉर इंटरेस्टेड टू डू ओके स्टिचिंग। तो वो क्या होगा कि एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये कहता है कि हर एक इंसान को वैसे काम दिया जाए जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो। इसलिए इसलिए हमारा जो है स्टार्टिंग में जो होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। नाउ थर्ड, दैट इज बेटर कोऑर्डिनेशन, better coordination between the factors, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फैक्टर्स के मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है, ये बताता है कि पहले सपोज 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड लिए थे, 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड मैंने लिया, ठीक है, और 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ऑफ लेबर को मैंने कंबाइन किया, 1 यूनिट ऑफ लेबर को मैंने लिया, ठीक है। तो 2 and 1, दिस इज नॉट अ बेटर कोऑर्डिनेशन, ये दोनों में कुछ खास कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक, फिर से मैं कहूंगी कि एक अकेला इंसान बहुत कुछ नहीं कर सकता है, राइट। तो अब ने हमने क्या किया कि एक और एक्स्ट्रा यूनिट को, लेबर को कंबाइन करके हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, 2 हेक्टर्स, 2 लेबर। तो अगर पर कैपिटा देखा जाए, पर कैपिटा हेक्टर्स देखा जाए, तो एक लेबर को 1 हेक्टर के, एक लेबर को 1 हेक्टर में काम करने को मिला, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है बिटवीन फैक्टर्स, बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटर कोऑर्डिनेशन होने के कारण जो इनिशियली देखा जाता है कि वो इंक्रीज करता है, और हम लोग जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली बेटर कोऑर्डिनेशन होने के कारण इनिशियली जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग रेट, राइट। Okay, now we can also say, or we can also add another point that better coordination होने के कारण marginal productivity जो होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है, with increasing rate. Now, we will see what are the causes of diminishing returns to a factor. ठीक है, आपने देखा होगा कि 3 फेज होता है, ओके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ओके। Now, what are the causes of diminishing returns which falls in second stage? So, diminishing returns. Diminishing returns to a factor. What are the causes? ये क्या हो गया? Increasing returns to a factor. Factors. Now, in third, we can say, in third phase is what? This is decreasing. सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिमिनिशिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि टीपी जो है वो बढ़ता तो है बट घटते क्रम से, ठीक है, इसलिए वो डिमिनिशिंग। टीपी सेकेंड स्टेज में देखा जाता है कि वो बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम से बढ़ रहा है, लेकिन टीपी थर्ड स्टेज में टीपी को क्या देखा जाता है कि वो डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज हो रहा है, वो घट रहा है। तो इस तो मैंने क्या किया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब कि सेकेंड स्टेज में होने के कारण, मतलब सेकेंड स्टेज में अगर आ रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज में आ रहा है तो उसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग returns to a factor. Now let's talk about the causes. So first would be fixity of the factor, ठीक है। अब लेट सपोज कि एक किचन है, ठीक है, एक किचन में है, एक किचन में दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग काम कर रहे हैं, चलो, दो, एक किचन था, किचन बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा, काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है, जिसको सब्जी कट करना था वो सब्जी कट कर रहा था, जिसको खाना बनाना था वो खाना बना रहा था। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी दो से ज्यादा है नहीं, किचन की कैपेसिटी अगर दो लोग से ज्यादा इस किचन में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी जो होगी क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो घटने लगेगी, क्योंकि दो लोग से ज्यादा हम इस किचन में ऐड नहीं कर सकते। तो जैसे अब पहले स्टेज में क्या हुआ कि अगर 2 हेक्टर्स था तो मैंने दो लेबर को ऐड किया, चलो, दिस इज व्हाट बेटर कोऑर्डिनेशन। लेकिन जैसे ये ये 2 हेक्टर्स के 2 लेबर्स के अलावा हम अगर तीसरा को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है, ठीक है, फैक्टर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है, एक्सेस यूज होने लगता है, ठीक है। नाउ imperfect now second point, that is imperfect factor substitutability. What is imperfect factor substitutability? फैक्टर अगर परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी की बात करें तो यही कहता है कि द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज परफेक्ट। जब भी हम सब्स्टिट्यूट्स कर रहे हैं फैक्टर्स का तो वो परफेक्ट कब होगा, ठीक है, तो वो इम्परफेक्ट कब होगा। तो वही बोल रहा है कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिंग, मान लीजिए मैंने कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, यूज किया, तो कैपिटल है, सपोज दो ही मशीन है, प्रोडक्शन प्रोसेस में दो ही मशीन है और मैंने क्या कर दिया, 3
लेबर को हायर कर लिया, या सपोज 4 लेबर को हायर कर लिया, तो ये क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी की हम सिर्फ लेबर को ऐड करते जा रहे हैं, ना कि मतलब हम सिर्फ लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, और फिक्स फैक्टर जो है उसे हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इसे तो जो रेशियो होगी कैपिटल एंड लेबर की, वो क्या होगी, इम्परफेक्ट होगी। ठीक है, दोनों की जो सब्स्टिट्यूबिलिटी है ना, वो परफेक्ट नहीं है, दैट इज इम्परफेक्ट। नाउ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। नाउ that is third, and this is last, coordination between the factors। इस पे भी एक तरह से वही कह सकते हैं कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जब मोर एंड मोर वेरिएबल्स we are adding, we are जब more and more variables we are adding, keeping fixed capital constant, the ideal ratio gets disturbed। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये क्या है कि पुअर कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा है। अगर हम कैपिटल और लेबर का रेशियो सिर्फ कैपिटल को कांस्टेंट रख कर लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं जो पर कैपिटा जो होगा वो क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, पर कैपिटा जो होगा वो फॉल करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी, क्योंकि ये पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर फैक्टर, वो कोऑर्डिनेशन सही से मैच नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस इज द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नाउ talking about the applications of the law of variable proportion is based on certain assumption। law of variable proportion जो है वो कुछ assumptions पे based है। बात करते हैं कि कौन सी assumption है। law of variable proportion, this is actually based on some assumption, talking about the assumption that ratio in which factor of production are combined can be changed। ठीक है, जो हम रेशियो यूज कर रहे हैं फैक्टर का, कैपिटल एंड लेबर का, वो क्या होना चाहिए, चेंज्ड होना चाहिए। दैट इज वो शॉर्ट टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। ठीक है, कीप इन माइंड, जब भी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करें, तो हम उसमें मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर रेशियो लेते हैं तो कैपिटल क्या है, कांस्टेंट, एल क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो चेंज, अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, बट दोनों का जब रेशियो लेंगे ना तो होगा चेंज। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में इस लॉन्ग रन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कौन फिक्स्ड कैपिटल, कौन फिक्स्ड फैक्टर है और कौन वेरिएबल फैक्टर है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी प्रोड्यूसर्स हैव इनफ टाइम टू एडजस्ट द फैक्टर, इवन इवन इट हैज फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है लॉन्ग रन में, तो इसका जब रेशियो लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों में चेंज करते हैं तो ओवरऑल इसका रेशियो जो होता है फैक्टर रेशियो, इट गिव्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट देता है। ठीक है, now second assumption that unit of labor or unit of variable factors producers are hiring should be what, homogeneous। मतलब
कि जो स्किल्स होगी लेबर की, जो कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी है लेबर की, वो इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? efficient होनी चाहिए। Now, the third reason would be of the law of variable proportion, the assumption of law of variable proportion, the state of technology does not change. Technology does not change. जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये अजम्पशन है, होमोजेनियस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, और ये जो हम रेशियो ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कि यदि यदि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को वायलेट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वायलेट कब होगा? ठीक है, जो भी अजम्पशन है, अगर अजम्पशन को फॉलो ना करे तो क्या होगा? तो पहला, अगर हम अजम्पशन को, इफ अजम्पशन डज नॉट फॉलो, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जो इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी शुड बी इम्प्रूव, जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, तो ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अजम्पशन है। लेकिन अगर अजम्पशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अजम्पशन वैलिड नहीं लेते हैं या वायलेट करते हैं तो क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी जो होना चाहिए शुड बी चेंज्ड। सेकेंड, when someone substitutes the fixed factor is discovered so that the we can say constraint of the fixed factor is removed, ठीक है। मतलब कि यदि फिक्स फैक्टर, जैसे कि हम फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे थे और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अगर फिक्स फैक्टर के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, मतलब फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, ताकि फिक्स फैक्टर में भी कुछ इम्प्रूव कर सके, फिक्स फैक्टर को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका जो कह सकते हैं जो ओवरऑल एक कह सकते हैं जो कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है, कि वो कंस्ट्रेंट होगा कि फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट्स ला दें फिक्स फैक्टर की जगह, तो इसका मतलब हम अब इस सब्स्टिट्यूट्स लाने का और इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इसमें भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फिर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, actually there is 2 points only. There are 2 points, that is technology should be changed or improved. Fixed gap factor, uh, instead of fixed factor just introduce substitutes of fixed factors, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज आई थिंक लास्ट पॉइंट, रिलेशनशिप between TP, MP and AP। तो इसका रिलेशन क्या होगा? तो पहला बात करें कि क्या है? टीपी। दूसरा देखें तो ये क्या है? एमपी और एपी जो है, keep in mind that AP is never zero, but MP can be, ठीक है। MP जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट AP जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो है यहाँ पे क्या है? टीपी जो है मैक्सिमम है, टीपी जो है मैक्सिमम है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टीपी जहाँ मैक्सिमम है वहाँ हमारा एमपी क्या है? जीरो है, और टीपी जैसे डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ हमारा एमपी जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और वी कैन अनदर ऑब्जर्वेशन वी कैन सी एमपी इज इक्वल टू एमपी, ठीक है। तो यहाँ एमपी और एपी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एमपी और एपी अगर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो एपी एंड एमपी जो है वो इक्वल हो जाएगा,
ठीक है. Now TP is increasing with increasing rate, then MP is also increasing with increasing rate, and AP is also increasing with increasing rate. So if AP is increasing, then MP is greater than AP. ठीक है, कैसे बताती हूँ. यहाँ क्या हो रहा है, एमपी जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो एमपी जैसे बढ़ रहा है, सॉरी एपी यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है. टॉकिंग अबाउट एपी, एपी को लेकर चलते हैं. एपी जैसे बढ़ रहा है तो एमपी क्या है, एपी क्या है, ऊपर. एपी जो है वो एमपी के नीचे है, और एमपी जो है कह सकते हैं एपी के ऊपर है. ठीक है, तो जैसे एपी अगर बढ़ता है, एपी इज इंक्रीजिंग, देन एमपी इज ग्रेटर देन एपी. ठीक है. दूसरा पॉइंट, we can say AP is decreasing. AP is decreasing. Then MP is less than AP. अब ये कैसे होगा बताती हूँ. जब AP फॉल हो रहा है तो AP MP क्या है, लेस है किससे. इसलिए मैंने ये रिलेशन लिखा कि जैसे AP is decreasing, then MP is less than AP. Okay. Third, AP is maximum when MP is equal to AP. Is it so? Fourth point, MP may be 0 or negative. Again, I'm going to write it down. As I told you earlier in the previous slide, that AP is never 0, or AP can never be 0 or negative, but MP can be 0 or negative. Okay, so MP may be 0 or negative, but AP continues to positive. Is it so? तो यहाँ तक ये रिलेशन था. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. जो बचा हुआ था वो मैंने करवा दिया कि टीपी एमपी एपी ये रिलेशन बताता है. टीपी एमपी एपी में क्या रिलेशन बताता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो थैंक यू सो मच.